So today we have Nikhil, Jill, and Dhruv. So let's start. And if somebody joins, then we will add them. Okay. So today we will learn this block diagram reduction. Last time I gave you a bit of overview about block diagram, and we saw associated concepts like what is block and what is summing point, what is takeoff point, and also I taught you a bit how to get a transfer function and how to reduce them, but we will see today in a bit detail. So just a quick recap what we have done in the last class. So if you see, yeah, so we talked about the block diagram. So we have three major concept in that. First, what is block diagram? Second, what is summing point? And third, what is takeoff point? So we define block as interconnection of systems or subsystems which will have input and output. It's a graphical representation of system or combination of systems or subsystems. And I told you about summing points where uh, these signals are getting added or subtracted as per the mathematical operator. In this case, we see here y equals to a plus b. In this case, y equals to a minus b. Here, y equals to a plus b minus c. And then I told you about takeoff points. The idea of takeoff point is when we are trying to send the same signal to all other blocks, and the point will be known as takeoff point. For example, here in this takeoff point, we are sending RS signal to GA, GB, and GC. So this was the idea of takeoff point. Here, this is a takeoff point. So signal at this line will be CS. Signal at this line also will be CS. Okay. And this is a classical representation of some of the electrical system. Last time I talked about mechanical system. So it is essentially a RLC circuit. If you want to formulate in terms of block diagram, then this will look like something like this. And I also explained in with series and parallel combination. So this is a series combination when blocks are appended in a series way. So final block diagram or single block diagram for this kind of connection will be like this. So when they are arranged in a series fashion, then these transfer function will be multiplied with each other. And in case of parallel connection, we add or subtract. Suppose here both the summation are both the operators are at summation sign, so these are getting added. So final block diagram for this combination will be G1 plus G2, or this is also known as transfer function. I've already told you about that. And I also described how to get the transfer function of feedback connection. So after solving, you will finally get GS by 1 plus GS HS. This is case for negative feedback. In case of positive feedback, if you put it plus sign, then your transfer function will become GS by 1 minus GS and HS. Okay. So far, do you have any doubt in this concept? Any question from all of you? सर ये पीपीटी मेल कर दीजिएगा ना, ये जो क्या वाली कर, और आज के दो वो क्या करना है पीपीटी? पीपीटी मेल कर दीजिएगा ना ओह हमें। अच्छा, हाँ हाँ, पीपीटी में मेल करूंगा। अब जैसे यूनिट 2 खत्म होगा ना, लेट्स सी हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। हाँ तो सर वही यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों साथ में कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं यूनिट 1 यूनिट 2 सेंड करता हूँ। जैसे अभी हमने क्या क्या कवर किया ना, वी शुड ऑल्सो हैव द ट्रैक कि हमने क्या क्या किया है। जैसे यहाँ पे है सिलेबस विल बी हियर। ओके, तो यूनिट 2 हमने कवर कर दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स एंड ट्रांसफर फंक्शन। अभी हम देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा डिटरमाइनिंग द ट्रांसफर फंक्शन। ये आज हम देखेंगे थोड़ा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के बारे में, एंड देन वी विल प्रोसीड। ओके,
coming to the today's lecture. So let's see block diagram reduction का थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, इसके रूल्स क्या क्या हैं. Don't go with the numbers. I think it's quite intuitive what we are supposed to do to get a final transfer function. So rule one ऐसा है कि check for the blocks connected in series and simplify it. अगर सीरीज में होगा तो they will be multiplied with each other, और पैरेलल में होगा तो they will be added or subtracted as per the notation. रूल 3 में है if blocks are connected in feedback can be negative or positive loop में, उसको simplify करना है. So in last class we have seen how to simplify series connection, how to simplify parallel connection, and how to simplify feedback connection. And if there is difficulty with takeoff point while simplifying, so हम takeoff point को shift भी कर सकते हैं. Generally we shift takeoff point towards right and summing point towards the left. We will see in the example. And our whole idea is to combine each block together and put it in one block, and whatever uh, element will be inside the block, that will be the transfer function for the entire system. So let's see. This is the example actually we are trying to see. So can somebody tell me how many series connection we have and how many parallel connection we have in this at first cut? Let me maximize it. Yeah. सबको स्लाइड दिख रहा है क्या? यस. तो इसमें सीरीज कनेक्शन भी है और पैरेलल भी है. हम लोगों ने देख लिया सीरीज का क्या होता है कि बैक टू बैक अगर ब्लॉक अपेंडेड होते हैं उसको सीरीज बोलते हैं, और उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है तो दे आर नोन एज पैरेलल. तो अभी फर्स्ट कट से हमें कितना सीरीज और कितना पैरेलल दिख रहा है इसमें? एक सीरीज है और सर 4 पैरेलल. 4 पैरेलल. ओके, तो कैन यू टेल मी इन टर्म्स ऑफ G1 G2 H1 H2 ऐसे करके कौन कौन सा सीरीज है, कौन कौन सा पैरेलल है? G1 G2 सीरीज है, G3 G4 पैरेलल है, G3 H1 G4 H2 पैरेलल है. वेरी गुड, वेरी गुड. और ओके, H1 नेक्स्ट. H2 H3 फीडबैक यूनिट्स है. और क्या है फीडबैक? H1 H2 एंड H3. हाँ, वेरी नाइस. सो H1 H2 H3 जो वो फीडबैक है, और सीरीज है क्या इसमें? G1 वेरी गुड. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. तो उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना? आई एम वेरी हैप्पी टू हियर एक्चुअली आपको आइडिया पता चल गया, बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट डोंट गो ओनली विद द रूल 1, रूल 2, रूल 3. ये तो इंट्यूटिवली हमें लगता है कि इन दिस केस वी हैव G1 G2 इन सीरीज. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये G1 टाइम्स G2 हो जाएगा और इसका एक फीडबैक पाथ बनेगा. और यहाँ पे क्या होगा कि G3 और G4 पैरेलल में है, तो वी विल reduce this loop with one block that will be G3 plus G4. तो G3 G4 यहाँ हो गया, G1 G2 यहाँ हो गया, तो ये सिंप्लीफाई होगा. अभी टेक ऑफ पॉइंट को मैंने बोला था कि इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं. जनरली टेक ऑफ पॉइंट को हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं. तो ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट है अगर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो G5 और ये G3 प्लस G4 ये फिर से पैरेलल और सीरीज में हो जाएगा. तो वी विल सी एक्चुअली, तो वो पता चल जाएगा कैसे करना है. तो पहले केस में हमने क्या किया कि एज यू, हाँ 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 वो कराता हूँ. अभी हम उसको करेंगे जब वो उसका शिफ्टिंग करेंगे ना तो बताता हूँ मैं. तो सबसे पहले ये वाला हम देखते हैं G3 और G4 G1 G2 का. तो सेकेंड वाले ब्लॉक इसमें स्लाइड में G1 G2 जो सीरीज में था वो कंबाइंड हो गए, G1 G3 जो पैरेलल में थे वो हमने ऐड कर दिया, कंबाइंड करके G3 प्लस G4. यहाँ तक किसी को डाउट है ये स्टेप नो में? सर. वेरी गुड, सो देयर इज नो डाउट. अभी देखो कि ये वाला हमने लास्ट क्लास में किया था कि यहाँ पे G1 और H1 था, और यहाँ पे जो भी ब्लॉक था यहाँ पे ये था नेगेटिवली अगर फीडबैक है, तो हमने किया था कि दिस बाय G1 G2, दिस बाय 1, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता था 1 प्लस G1 G2 टाइम्स H1. तो ये वाला जो ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन है और ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसको सॉल्व करने में हमको
वी नो द रूल फॉर दैट। तो ये नेगेटिव फीडबैक है, तो पहले हमने सीरीज पैरेलल सॉल्व किया, अब नेगेटिव फीडबैक को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सिंगल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा G1 G2 1 प्लस G1 G2 टाइम्स H1, राइट। तो ये वाला क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं टेक ऑफ पॉइंट में, ये जो पहले यहाँ पे H2 था वो H2 बाई G/5 कैसे हो गया, है ना, इसको हम सीखते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स चेक G5 यहाँ पे करते हैं। जैसे टेक ऑफ पॉइंट का आइडिया क्या है, ये वाला यहाँ पे था और ये यहाँ पे नॉन एज H2, और यहाँ पे जो था वो हमारा था G5। और इसमें जो भी अपना ब्लॉक है वो G2 G3 प्लस G4 था, या G2 G जो भी था इसके अंदर, वी विल कीप इट लाइक दैट। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है, आई हैव टू शिफ्ट इट हियर, यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या होगा कि ये वाला जो सिग्नल है वो इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट होगा वो G5 टाइम्स H2 होगा। तो उसको अगर हमको यहाँ लेके आना है, ये ब्लॉक ये वाला है, ये ऐसा ही है, वी विल जस्ट चेक इट। ये G5 यहाँ था, G5 को मैंने अंदर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि H2 बाई G5 होता है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज इफ यू सी इन दिस केस H2, now since it is coming left side, so now it is getting reduced by this factor G5 फैक्टर। तो जितना फैक्टर से रिड्यूस होगा उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए G/5 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब फाइनली ये इधर जाएगा तो ये G5 कैंसिल हो जाएगा और H2 बचेगा सिग्नल में। तो पहले वाले केस में क्या था कि इसके पहले वाले केस में यहाँ पे जो सिग्नल था वो H2 था, और इसको हमने लेफ्ट साइड रिड्यूस किया। तो अगर हम लेफ्ट साइड रिड्यूस करते हैं तो उसके बाद का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसी अमाउंट के फैक्टर से वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमने वही उसी को रिड्यूस किया। तो देखो यहाँ पे ये जो G5 है, अगर इसको हमने लेफ्ट साइड, सॉरी, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसलेट किया, ट्रांसफर किया, तो ये इसके उतना ही फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसका एलिमेंट है। देखो अगर अब यहाँ पे ओरिजिनली ये वाला जो पार्ट है ये G5 है, लेकिन हमने यहाँ से G5 को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर हमें अभी पता करना है कि यहाँ पे क्या है, तो स्टिल वी हैव दिस फीडबैक H2 का, G5 कैंसिल हो जाएगा। तो द आइडिया इज व्हेन यू शिफ्ट ट्रांसफर फंक्शन और द ब्लॉक लेफ्ट साइड टू द टेक ऑफ पॉइंट, तो ये उसी के फैक्टर से रिड्यूस करता है, तो H2 by G5, so that's why it is coming here H2 by G5 in the next slide। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये हो गया, वो आ गया। तो इज इट क्लियर ना कि अगर हम ब्लॉक को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो उसी फैक्टर से ये रिड्यूस होता है। तो अभी देखो नेक्स्ट, अभी कैन समबडी टेल मी दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप?
अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सीरीज में है उससे X3 का जो फीडबैक है उसको। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सीरीज वाला इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसके बाद इसका जो फीडबैक है, ये देखो ये भी नेगेटिव फीडबैक है, प्लस के साथ ये माइनस आ रहा है, तो वी विल सॉल्व दिस पार्ट। वेरी गुड। तो नाउ यू सी वी हैव कंबाइंड दिस टू ब्लॉक, सीरीज ब्लॉक्स, तो हो गया G3 प्लस G4 टाइम्स G5। अभी इसका फीडबैक है, इसको सॉल्व करना है, इट्स वेरी इजी। तो ये हमने कर दिया। तो देखो नाउ ये वाला ब्लॉक के साथ रिड्यूस करके नाउ इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। So now we have series combination. So now again we have series combination of these two individual block. इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको और दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा होगा। Now we have, can somebody tell me that is it a positive feedback or negative feedback? पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक है, राइट? तो भी पॉजिटिव फीडबैक को सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बचेगा वो बचेगा इस तरह से, दिस वन। So now this is a block diagram reduction from block diagram reduction rules. Forget about the rules. Whatever your intuition says, we will do that. I mean, ये तो हमारा intuition बोले कि अगर वो सीरीज में है तो उसको सॉल्व करना है, पैरेलल में है तो उसको सॉल्व करना है, फीडबैक में है उसको सॉल्व करना है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बहुत सारे सिस्टम और सब सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन को रिड्यूस करके फाइनल एक ब्लॉक में लेके आना है। तो नाउ वी कैन सी दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल ब्लॉक, और इस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं दैट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सो अभी देखो, if somebody asks you to find the transfer function for this block diagram, entire arrangement is called block diagram, it's a combination of multiple blocks. So answer for that will be this. Transfer function for overall block diagram will be this one. ये है transfer function. So any doubt so far? No sir. I'll try to give you some other arrangements so that you can solve by yourself and do some practice. It's very easy. अभी देखो कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है व्हाट वी वर ट्राइंग टू लर्न इज सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो परहैप्स वी आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, तो वी लर्न अबाउट इट। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है कि इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। सो व्हाटएवर इक्वेशन वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और लाप्लास इक्वेशन, उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इंस्टेड ऑफ ब्लॉक, तो नोड इज अ पॉइंट टेबल और सिग्नल, वो पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नोड। फर्स्ट नोड इनपुट, सेकंड इज आउटपुट नोड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड नोड। तो इन इनपुट नोड which has only outgoing branches, मतलब वहां से सिग्नल निकल रहा है बाहर की तरफ, and if signal is coming to the node then that node is called output node, and mixed node means it can be combination of incoming and outgoing branches together. तो अभी जैसे ये क्या है कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ algebraic equation as I said earlier. So in this case we have three, I said we have three input. So can somebody tell me that what are the input, output and mixed node here? नोड मतलब कि ये y1 जो है ये नोड है, y2 नोड है, y3 नोड है एंड y4 नोड है। तो इनपुट नोड कौन सा होगा? y1 is output, y4 is input, and y2 and y3 are mixed nodes. राइट, क्योंकि y2 में क्या हो रहा है, सिग्नल आ रहा है ना। इनपुट नोड नो, देखो जहां से सिग्नल निकल रहा है, राइट, y1 से सिग्नल निकल रहा है, तो दिस इज इनपुट नोड। यहाँ देखो डेफिनेशन में वी हैव लर्न
which has only outgoing branches. तो y1 का जो ब्रांच है वो ये है और इससे आउटपुट है, और y3 से आउटपुट ये है, y2 और y2 में इनकमिंग भी ब्रांच है और आउटगोइंग भी ब्रांच है. So your input node is y1 because your signal is coming out from y1, और आउटपुट में क्या हो रहा है कि your signal is going towards y4, है ना. डेफिनेशन में क्या बोला था, तो विच हैज ओनली इनकमिंग ब्रांचेस. तो y के लिए सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस है, y1 सॉरी y4 के लिए, y1 के लिए वी हैव ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस, देयर इज नो इनकमिंग ब्रांचेस. तो ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये ब्रांचेस है, y1 y2 ब्रांच है, y2 y3 ब्रांच है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में y2 y3 ब्रांच है, y3 y4 ब्रांच है. तो ये y1 y2 y3 एंड y4 दे आर कॉल्ड नोड्स, और in y1 we have only outgoing branches, there is no incoming branches to y1 node. y2 में क्या है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है? दोनों. वेरी गुड, दोनों है. और y3 में इनकमिंग है या आउटगोइंग है? दोनों सर. और y4 में? इनकम में. ठीक है. तो एज पर डेफिनेशन, if node has outgoing branch, it is input. If node has both output and if node has both incoming and outgoing branch, they are called the mixed node. Output node if it has only incoming branch. So y4 is your output node. So y1 is input, y2 y4 is output node, y2 and y3 since they have incoming and outgoing, so they are known as mixed node. ओके. अब ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रांच इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस टू नोड. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि y1 और y2 को ये नोड, y1 y2 को जो ज्वाइन करता है लाइन, उसको हम ब्रांच बोलते हैं. y2 y3 को ये लाइन ज्वाइन कर रहा है और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है. दिस टू आर द ब्रांचेस फॉर y2 एंड y3, एंड y3 y4 अगेन जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको हम ब्रांच बोलते हैं. तो ब्रांच में क्या होता है कि वी हैव, सपोज नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्रांच. So we have gain is associated with this notation a, और इसका डायरेक्शन भी होता है, ये फॉरवर्ड होता है और बैकवर्ड भी होता है. तो इस ब्रांच में वी हैव ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव कर रहा है y1 टू y2. सो ब्रांच के लिए गेन जो है उसके लिए a है और डायरेक्शन क्या है वो फॉरवर्ड है. नाउ कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द गेन फॉर y2 y3 ब्रांच और डायरेक्शन, ये वाले ब्रांच के लिए उसका गेन क्या होगा और ब्रांच का डायरेक्शन क्या है? टेल मी, जो भी समझ में आया यू कैन से, और नहीं आया तो आई विल रिपीट इट, नो प्रॉब्लम. कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है एंड वी विल गो स्लो, इट्स नॉट अ लाइक, जब तक हम समझ नहीं लेते हैं वी विल नॉट गो फॉरवर्ड. तो लेट्स सी, मैंने बोला कि ब्रांच का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें दो चीज होता है, फर्स्ट वन इज गेन एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन. तो ये वाला जो ब्रांच है जो y1 y2 को कनेक्ट कर रहा है, दैट लाइन इज कॉल्ड ब्रांच, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रांच. और सेकंड क्या है कि इसके साथ जो भी नोटेशन एसोसिएटेड है बोल्ड लेटर में, दैट इज नोन एज गेन ऑफ दैट ब्रांच. और ये जो एरो का साइन है ना, अगर y1 से y2 का डायरेक्शन इस तरह से है कि y1 से निकल के y2 में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड. अगर y2 से y1 में आता इस ब्रांच के लिए, तो दैट इज नोन एज बैकवर्ड डायरेक्शन. तो माय क्वेश्चन इज नाउ, ये ब्रांच के लिए जो y2 और y3 को कनेक्ट कर रहा है, ऊपर वाला जो ब्रांच है, ओके, तो ये कर्सर दिख रहा है क्या जो मैं दिखा रहा हूँ, या इट्स नॉट विजिबल? विजिबल. ओके, सो लेट्स डू दैट एक्सरसाइज, यहाँ पे करते हैं. So we have two major concepts in SFG, that is called node
and second one is called the branch. Definition क्या है? ये मान लो कि मैंने ये y1 है and this is y2 and again I'm writing a. So can somebody tell me now about the node first? Node के लिए करते हैं. Node क्या है इसमें? इस वाले SFG में that is known as signal flow graph. सिग्नल फ्लो ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ algebraic इक्वेशन. algebraic equation. algebraic equation. Okay. So यहाँ पे we are talking now about the node. Can you tell me that with our understanding what is node? What are the nodes actually? Node क्या कहते हैं? y1 Very good. So coming to the node y1 y2 there is no problem in this understanding. Okay, now branch. तो ब्रांच का दो चीज हमें मालूम होना चाहिए. फर्स्ट इज गेन एंड सेकंड इज डायरेक्शन. तो ब्रांच का जो डेफिनेशन है ये क्या होता है कि दिस इज अ जॉइनिंग लाइन बिटवीन टू नोड्स. तो ये ब्रांच है y1 y2 लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है दिस इज कॉल्ड अ ब्रांच. इसका गेन क्या होगा? somebody क्या होगा? a वेरी गुड. a सो plus गेन a इज a. और व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्शन कैन बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड. इसका डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? forward. So forward. Very good. So I'll now y1 y2 b. So can we say now we have two nodes as y1 and y2. Gain is b and direction is backward. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके वेरी गुड. तो अभी जैसे थोड़ा सा चेंज किया मैंने y में एक और एलिमेंट ऐड कर दिया. ये भी पॉसिबल है एंड इसका कर दिया c. तो अभी जो y1 y2 के नोड के बीच में जो ब्रांच है वी हैव टू ब्रांचेस नाउ. फर्स्ट ब्रांच इज विद गेन b, सेकंड ब्रांच इज विद गेन c. फर्स्ट वाले ब्रांच में इसका डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड है. सेकंड वाले के केस में इसका जो ब्रांच है वो इसका जो डायरेक्शन है वो है फॉरवर्ड विद गेन c. राइट. अभी मुझे एक चीज बताओ कि थोड़ा सा हम एकदम से पहले वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं. ये है y1 ऐसे नहीं करते. यहाँ से y1 वो प्लस की बात हम बाद में करते हैं. एक्चुअली वो समझाता हूँ मैं. तो अभी देखो कि ये वाला किसको फैमिलियर है? ये मतलब ये वाला क्लियर है?
दिस साइन इज अप टू अस नाउ। तो अभी ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बनाया है इसका, तो सो फार वी वर टॉकिंग ओनली अबाउट दिस टू पार्ट्स, राइट। तो अभी मुझे बताओ कि ये वाला मान लो कि 1 2 है लेफ्ट साइड में, 1 एंड 2, और इसका है लेट्स से ए एंड बी। तो 1 का मैचिंग किसके साथ होगा और 2 का मैचिंग किसके साथ होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? लेफ्ट साइड वी हैव ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, राइट साइड वी हैव सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो 1 वाला किसके साथ मैच होगा, 2 वाला किसके साथ मैच होगा? 1 वाला ए के साथ, 2 वाला बी के साथ। टेल मी अगेन, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। 1 है वो ए के साथ और 2 है वो बी के साथ। Very good. So now can you also make some connection in your mind that so far we were talking about the block diagram. Abhi we are talking about the signal flow graph. So these two are same thing. और ब्लॉक डायग्राम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था? वी वेर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन, राइट। इन सिग्नल फ्लो ग्राफ आल्सो वी विल ट्राई टू फाइंड आवर ट्रांसफर फंक्शन। तो ये जो है, ये दोनों मेथड जो है या दोनों अप्रोच जो है वो ट्रांसफर फंक्शन को अचीव करने के लिए है, लेकिन दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। एक का जो प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो ब्लॉक के टर्म्स में होता है एंड वी कॉल देम एज ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। एक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ग्राफ के टर्म में होता है, सिग्नल और ग्राफ के टर्म में, एंड वी कॉल देम एज सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट का ए के साथ कनेक्शन है और ए एंड 1 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो है वो ऐसा है। अभी नाउ यू कैन डिसाइड दिस इज अ बैकवर्ड पाथ and this is a forward path. So backward path को we can assign with negative sign, forward path को we can assign with negative sign, right? So अभी what should be the transfer function of A? ये A का मतलब this is not A, this is capital A वाला जो, अच्छा चलो बताओ ये what should be the transfer function of this block? I mean this one. Okay, now एक स्टेप और पीछे चले जाते हैं। Okay. So okay, all of you. तो ये वाले रिप्रेजेंटेशन में वी हैव y1 a और y2। तो y1 हमारा क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? जनरली जो हमारा जनरल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, y1 को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। वेरी गुड। और y2 हमारा हो गया आउटपुट। ये बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम का जो हमने पढ़ा था ना शुरू के क्लास में। सिस्टम ऐसे है और ऐसे है। अगर ये y1 है y2 है, so this is our mathematical model of the system. This is input or this is output. ये जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन है, सो आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दैट। और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन, अब देखो जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू, तो दिस सिस्टम इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ रियल टाइम सिस्टम। इसका जो प्रेजेंटेशन हो सकता है वो हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में या लाप्लास इक्वेशन के टर्म में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में हमने स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम देखा था, वेयर वी टॉक्ड अबाउट mx डॉट डबल डॉट प्लस bx डॉट प्लस cx। ये होता, ये भी दैट इज आल्सो नोन एज मैथमेटिकल मॉडल। और लाप्लास के इक्वेशन में हमने क्या किया था, इट कैन बी योर दिस वन m, इसका अगर ये है, or let's say anything actually, so I'll not write in great detail. We have तो इसका हो जाएगा s स्क्वायर x ऑफ s प्लस b टाइम्स s x s प्लस c ऑफ x s। मतलब ऐसा कुछ है। वी आर सेइंग द सेम थिंग, बोथ आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम। ये दोनों ही मैथमेटिकल मॉडल है
स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम का। ये जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाप्लास इक्वेशन है। ये जो सिस्टम के अंदर जो भी एलिमेंट रहता है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ, essentially we are now in this zone, Laplace equation or Laplace transformation part. So whatever element is inside this block in both the representation, block diagram और signal flow graph, ये वाला क्या होगा, Laplace transformation को represent करेगा और system को represent करेगा. So now tell me, what is the mathematical model of the system in this case? Number one, it's only A, right? है ना? Yes. समझ में आ रहा है ये? You can ask me also. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल होता है जो कि लाप्लास डोमेन में आता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे सर एस नहीं है इसमें लिखा हुआ। अभी इसको ट्रांसफर फंक्शन के आइडियोलॉजी से हम चल रहे हैं और इट डजंट हैव एनीथिंग, जस्ट वी हैव ए ओनली गेन। सो फॉरगेट अबाउट नाउ, आई मीन लाइक कि लाप्लास रिप्रेजेंटेशन में ऐसा क्यों नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट ए ऑफ एस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। Now the idea is whatever element is inside this block, that is known as the transfer function of the block. और ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक क्या होता है, देखो जैसे ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, ट्रांसफर फंक्शन दिस इज लाप्लास आउटपुट बाय लाप्लास इनपुट। तो हम ऑलरेडी लाप्लास डोमेन में ही है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका इक्वेशन तो ऐसे बनेगा, y2 equals to a times y1 और y2 by y1 equals to nothing but a. तो a is nothing but transfer function. तो ये ब्लॉक के अंदर जो भी एलिमेंट है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के टर्म में, दैट इज नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। हमने अभी फिर से देखा था ये वाले फर्स्ट एग्जांपल में कि जो भी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स हैं उसका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन करके एक ब्लॉक में लाते हैं, तो दैट सिंगल ब्लॉक इज नोन एज ब्लॉक डायग्राम ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे जो हम गेन बोल रहे हैं, गेन इज एसेंशियली अ ब्लॉक। तो ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा ए। वी विल लर्न इन अ डिटेल एक्चुअली कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे निकालते हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। और इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, यू हैव टू टेल मी। So can anybody tell me that what should be the transfer function of this one? ये क्या चीज है इसको देख लो पहले। अभी जैसे b by 1 minus bc, okay, so I am very happy to hear the answer. ये इसी वाले आइडिया से आ रहा है, इसका जैसे हमने किया था ना g by 1 minus gh ट्रांसफर फंक्शन, वही है ये भी। तो वो वेरी गुड, वेरी इट्स एक्यूरेट आंसर। तो नाउ मैं क्या बोल रहा हूँ कि वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द एनालॉजी। हम जो सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ रहे हैं दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड नाउ, व्हाट वी स्टडीड अर्लियर इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन और इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। देखो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है वो एसएफजी में ऐसे करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एसएफजी में ऐसे करते हैं। तो अभी हम आने वाले क्लासेस में ये देखेंगे कि इस एसएफजी का ब्लॉक डायग्राम के साथ क्या कनेक्शन है और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो दोनों ही केस में है, इन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और इन सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हम क्यों एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज टू डिजाइन ए गुड कंट्रोल सिस्टम और डिजाइन एनी क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम वी नीड टू हैव ए मॉडल। तो देखो ये जो रिक्वायरमेंट है कंट्रोल डिजाइन का वैसा है, मतलब हमें थिंक होना चाहिए कि व्हाट
why we are doing that? Last time में ध्रुविल ने पूछा था क्वेश्चन कि सर why we are trying to get this control, मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्यों करते हैं? तो कंट्रोल सिस्टम ऐसा है, इसका जो रिक्वायरमेंट है डिजाइन का वो ये है कि वी नीड अ मॉडल. दिस मॉडल कैन बी algebraic मॉडल, डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड मॉडल या लाप्लास इक्वेशन बेस्ड मॉडल. हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे. I'll teach you study state equation model और state space model. So doesn't matter, you can have algebraic differential Laplace or state space. तो state space model का हम बात तब करते हैं when we go for a modern control techniques. Laplace equation model का बात हम तब करते हैं when we go for classical control system design technique. Algebraic और differential equation they are very generic in nature. नॉर्मली जो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स होता है. तो डायरेक्टली डिजाइनिंग फ्रॉम differential equation sometimes it's difficult approach, but yes it can be designed using differential equation also. तो जब हम इसको लाप्लास में कन्वर्ट करते हैं तो it becomes essentially a algebraic equation फॉर्म में. और अगर algebraic equation है तो उसका भी कंट्रोल डिजाइन easier होता है. लेकिन we know from our mathematical understanding most of the controls are most of the models or systems are either first order differential equation सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर. तो ये अलजेब्रिक में हम उसको नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चला जाता है. एंड टू सिंप्लीफाई और टू गेट अगेन इन अ sort of algebraic equation we have to go for Laplace equation approach. तो Laplace में जनरली जो मॉडल होते हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं एंड दे आर वेरी लीनियर एक्चुअली. तो इसीलिए वी प्रिफर Laplace ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी मॉडल. तो ये सारी चीज जो हम कर रहे हैं ए बी सी और ये दे आर इन लाप्लास डोमेन, राइट. सो डोंट कंफ्यूज दैट. यहाँ पे एस नहीं है, यू कैन पुट दैट आल्सो. अभी वो सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग उसका देख रहे हैं. कमिंग टू द स्लाइड. तो ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करके हमने देखा था कि ये यहाँ पे ऐसा आ रहा था. दैट इज ब्लॉक डायग्राम पार्ट. तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दो था जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया एंड देन वी आल्सो वेंट टू सम अदर डिटेल्स. So we have two things in SFG to understand. अभी first one is node. तो node यहाँ पे हमारा है y1, y2, y3, y4. इनपुट नोड्स में क्या होता है कि सिग्नल उससे बाहर जाता है, इट हैज आउटवर्ड डायरेक्शन. और आउटपुट नोड में क्या होता है कि सिग्नल हैज इनकमिंग डायरेक्शन, ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है. तो फ्रॉम आवर डेफिनेशन वी अराइव टू द कंक्लूजन दैट y1 इज इनपुट नोड, y4 इज आउटपुट नोड. मिक्स नोड में क्या होता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्स नोड. y2 और y3 फॉर एग्जांपल ब्रांचेस इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है. तो ब्रांचेस में हमने देखा कि दो फीचर्स होते हैं, गेन और डायरेक्शन होता है. तो इस केस में गेन ए है, बी है, सी है एंड इट इज रिटन माइनस डी. सो ऑलरेडी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर फॉरवर्ड होगा तो वो प्लस होगा और अगर रिवर्स है या बैकवर्ड है तो भी से गेन इज नेगेटिव. उसको हम अभी देखेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट है. अब कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे हम उसके बाद. तो यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. अभी एनी डाउट? ओके, वेरी गुड. तो अगेन जस्ट रिवीजन. देयर आर 4 ब्रांचेस, ये 1 2 3 and 4. These branches have gain A, B, C and minus D. अभी देखो जैसे हमने बात किया था कि SFG क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है. तो पहला ही इक्वेशन ये है y2 इक्वल्स टू a1 टू y1 a4 टू y4. तो अभी हमारा ये, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस इक्वेशन. आई विल सेंड यू द स्लाइड लेटर. तो यहाँ पे हमारे पास कितने इक्वेशन है? 1 2 3 4 5. वी हैव 5
separate equations. First one is y2 equals to a1 to y1, a4 to y4, y3 ये है, y4 ये है, y5 ये है, y6 ये है. अभी क्या करना है कि इसी का हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ रिकंस्ट्रक्ट करना है और कंस्ट्रक्ट करना है, सॉरी. तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो था y1 y2 इक्वल्स टू a1 टू y1 प्लस a4 टू y4. तो यहाँ पे जो y2 आएगा वो आएगा a12 टाइम्स y1 और यहाँ पे है प्लस a4 टू y4. तो ये जो गेन ऑलरेडी यहाँ पे अगर माइनस इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाया है, इट मींस दे आर अज्यूमिंग दैट gain is a42. a42 can be any number, it can be -2, -3 or anything. So we are not assigning any particular sign to it क्योंकि ऑलरेडी गेन में ये लिखा हुआ है, तो वी विल नॉट गो फॉर दैट. तो अभी देखो ये वाला इसको समझते हैं थोड़ा सा ये ऐसा क्यों आ रहा है. y we have y1 ऐसे जेनेरिक फॉर्म में हम देख लेते हैं. लेट्स से y1 y2 और ये है लेट्स से y3. तो ये जो y2 बन रहा है ना, y2 is now this times this ay1 plus b of y3. मतलब ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट हियर y4 और एनीथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे y2 क्या हो रहा है कि ये जो जंक्शन है y2 जंक्शन है, इस पे दो इनकमिंग सिग्नल है. जस्ट सी इनकमिंग सिग्नल y बिकॉज यहाँ से भी सिग्नल इसके अंदर आ रहा है और y3 से भी इसके अंदर आ रहा है. तो ये डिसाइड करेगा यहाँ पे हमें प्लस रखना है कि माइनस रखना है. तो बोथ आर इनकमिंग सिग्नल, so both signal will be added to each other. अगर ये इसका डायरेक्शन रिवर्स होता है तो हम उस पर सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो ये y2 में देखो कि ये जो सिग्नल आ रहा है वो y1 ब्रांच y1 नोड से आ रहा है और y3 नोड से आ रहा है. और सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है दैट इज नोन एज गेन, वो पहले वाले ब्रांच के लिए a है, दूसरे वाले ब्रांच के लिए b है. तो अगर हमें y2 का इक्वेशन लिखना है देन वी सी दैट यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है y1 से वो a गेन के साथ आ रहा है. तो वी विल मल्टीप्लाई a विथ y1 प्लस b विथ y3. इसका जो गेन का है वो y3 है. दैट्स व्हाई y2 इज रिटन एज ay1 प्लस by3. अभी देखो यहाँ पे इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे देखो 4-2 है राइट. y3 जो है अभी वो डिस्कनेक्टेड है. वी विल नॉट टॉक अबाउट y3. तो y2 का जो इक्वेशन था वो ऐसा था. वी हैड y3 इक्वल्स टू a1 टू y1 प्लस a4 टू y4. तो हमने इसको सॉल्व कर दिया. ठीक है. अभी नेक्स्ट इक्वेशन इसका है y3 के लिए, वो a23 y2 प्लस a53 y5 है राइट. तो देखो y3 का जंक्शन जो है वो इसमें y2 से सिग्नल आ रहा है और y5 से सिग्नल आ रहा है. तो जब इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा y3 के लिए हमारा y2 से सिग्नल आ रहा है और y5 से सिग्नल आ रहा है. y2 से जो सिग्नल आ रहा है वो गेन a23 के साथ आ रहा है. y5 के साथ जो सिग्नल आ रहा है वो गेन y53 के साथ आ रहा है राइट. तो यहाँ पे नाउ y3 विल हैव इक्वेशन एज a23 टाइम्स y2 प्लस a53 टाइम्स y5. दोनों ही इसके लिए इनकमिंग सिग्नल है y3 के लिए. सो विथ रेस्पेक्ट टू y3 दिस इज इनकमिंग सिग्नल एंड दिस इज इनकमिंग सिग्नल. दैट्स व्हाई दे बोथ आर एडेड टू ईच अदर. तो ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया. y4 बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है. y4 में यू हैव ओनली
सिग्नल कमिंग फ्रॉम y3 y4 के लिए, तो y4 का जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी हम इंडिविजुअल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। देखो y4 के लिए जो आ रहा है वो y3 टाइम्स a3 4 टाइम्स y3 आ रहा है। y4 यू हैव ओनली वन कनेक्शन। y5 के लिए a4 5 टाइम्स y4 प्लस a3 5 टाइम्स y3। इसका मतलब y5 में जो सिग्नल आ रहा है वो y4 से आ रहा है और y3 से आ रहा है। तो हम y5 का देखते हैं कैसा उसमें बना है। y5 में एक सिग्नल y3 से आ रहा है which is a3 5, एक सिग्नल 4 से आ रहा है which has gain a4 5। लास्ट इक्वेशन y6 जो नोड है वो a5 टाइम्स y5 है। इसका मतलब इसमें जो सिग्नल आ रहा है वो सिर्फ y5 से आ रहा है। तो देख लो अभी y6 के लिए a5 टाइम्स y5 आ रहा है। मतलब हमने क्या किया कि जो सारे इक्वेशन थे उसके इंडिविजुअल सेट्स के ब्लॉक में नहीं, ये एसएफजी में कन्वर्ट कर दिया उसको, या एसएफजी में रिप्रेजेंट कर दिया सिग्नल फ्लो ग्राफ में। तो यहाँ पे देखो कि हमने सब अलग अलग किया है। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशन, हम लास्ट इक्वेशन का वेयर यू हैव रिटर्न y6 इक्वल्स टू a5 6 टाइम्स a5, ये वाला, राइट। तो सबसे पहले इसका अप्रोच क्या होगा कि इस इक्वेशन में हाउ मेनी नोड्स वी हैव, कैन समबडी टेल मी हाउ मेनी नोड्स वी हैव इस इक्वेशन में? 6. वेरी गुड। तो 6 नोड्स में y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6 है। एक नोड दूसरे नोड के साथ किस तरह से कनेक्टेड है दैट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द मैथमेटिकल रिलेशनशिप और अलजेब्रिक रिलेशनशिप। पहले वाले केस में अगर हम बात करें y2 का, तो इसका जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह से है कि y2 जो है सबसे पहले y1 और y4 से कनेक्टेड है। तो ये y1 y4 जो है ये नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता चल गया हमें। और अभी जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इसका मतलब है कि दोनों सिग्नल जो है वो y2 के लिए इनकमिंग है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग एडेड टू ईच अदर। y1 सिग्नल का गेन a12 है, y4 सिग्नल का गेन जो है वो y42 है। तो दैट इज हाउ y2 इज रिकंस्ट्रक्टेड। ये हमने यहाँ से देख लिया कि y2 में a1 का a12 गेन से आ रहा है, y4 से a42 गेन से आ रहा है। बोथ आर इनकमिंग टू दिस, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग एडेड टू दिस पॉइंट। अभी जो फाइनल इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा इस तरह से। तो अभी सारे जो इंडिविजुअल इक्वेशंस के अगेंस्ट में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया था या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था वो इस तरह से था। तो अभी सबको कंबाइन कर दो तो इट विल लुक लाइक दिस। तो दिस इज अ फाइनल कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ टू द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने देखा। ठीक है, अभी इसका क्या है जो कन्वर्शन होता है। अब मान लो कि हमने अभी जो डिस्कस किया इट इज एसेंशियली अ कन्वर्शन, इट इज एसेंशियली अ सेम अप्रोच एज ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हम ब्लॉक के टर्म्स में दिखाते थे और सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम सिग्नल के टर्म्स में दिखाते हैं और ग्राफ के टर्म्स में दिखाते हैं। तो नाउ क्वेश्चन कैन कम कि अगर हमारे पास ऑलरेडी किसी भी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है तो हम उसको एसएफजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर नो? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को हम सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस सर नो? आंसर क्या होगा, यस या नहीं? यस, कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा था ये वाले एग्जाम्पल में, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ है, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल है। अब कैसे करना है वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ये स्टेप्स है एक्चुअली। तो सबसे पहले क्या होता है कि रिप्रेजेंट ऑल द सिग्नल्स वेरिएबल समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज नोड। तो हमें पता है कि किसी भी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में समिंग पॉइंट होता है, टेक ऑफ पॉइंट होता है और सिग्नल के वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड y1 y2 y4 y3 एक्सेट्रा। तो वो जितने सारे वेरिएबल्स है उसको नोड में कन्वर्ट करना है। तो टेक ऑफ समिंग पॉइंट और जो सिग्नल्स है वो नोड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज ब्रांचेस इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ।
तो जो ब्लॉक बन रहा था ब्लॉक डायग्राम में वो उसका ब्रांच हो जाएगा। रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द ब्लॉक ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज गेन ऑफ द ब्रांचेस इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ। देखो अभी जो 3 स्टेप है वो ये हमने क्या किया कि ये वाला एग्जांपल हम ले नंबर 1 जो लिखा है इसमें y1 जो है वो सिग्नल इनपुट सिग्नल है, y2 जो है वो आउटपुट सिग्नल है और इस दोनों के बीच का जो ट्रांसफर फंक्शन है ये ब्लॉक है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमने इसको नोड में कन्वर्ट कर दिया, तो y1 y2 विल बिकम योर नोड। ब्लॉक डायग्राम के अंदर का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हमने गेन से रिप्लेस कर दिया, सो दिस इज नाउ गेन। यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है यहाँ पे कि उसके ट्रांसफर फंक्शन को गेन में हमने कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम एज गेन ऑफ द ब्रांचेस इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ। कनेक्ट द नोड्स एज पर द ब्लॉक डायग्राम। नोड्स का जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको कनेक्ट करेंगे। इफ देयर इज connection between two nodes and if there is no block in between, they represent the gain of the branch as 1. I mean दो नोड कनेक्टेड है बट उसके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है तो वो सीधा सा फीडबैक होगा इस टाइप से। अगर मान लो कि ये और ये कनेक्टेड है, व्हाट इज ट्राइंग टू से, अगर यहाँ पे ये B है और ये कनेक्टेड ऐसे है, कोई C नहीं है और सॉरी ये मैंने मिक्स कर दिया थोड़ा। मतलब ये ऐसे B है, ये सीधा कनेक्टेड है ऐसे। तो ब्लॉक डायग्राम का इसका जो ये होगा वो दैट, जैसे मान लो कि हमने ऐसे कर दिया y1 y2 के लिए ऐसे किया और इसको ऐसे किया तो इसका गेन 1 हो जाएगा और इसका गेन b हो जाएगा। इफ देयर इज नो ब्लॉक इन बिटवीन देन वी विल रिप्लेस द गेन विद 1। ये है कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल समिंग पॉइंट्स बिटवीन समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट बिटवीन इनपुट और समिंग पॉइंट, इनके बीच कोई गेन नहीं होता है, मतलब कोई ब्लॉक नहीं होता है, तो दैट विल बिकम 1 बिटवीन टेक ऑफ पॉइंट एंड आउटपुट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं टेक ऑफ पॉइंट एंड आउटपुट, टेक ऑफ इनपुट एंड समिंग पॉइंट्स और समिंग पॉइंट्स एंड टेक ऑफ पॉइंट, इनके बीच में कोई ब्लॉक नहीं होता है, देन वी विल कीप असाइन देम एज गेन 1। इसका एग्जांपल देख लो, वी विल सी परहैप्स इन द नेक्स्ट टाइम। ये है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और ये है सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ यू सी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे। जस्ट एक चीज के लिए देखते हैं कि ये समिंग पॉइंट के बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, तो देखो गेन 1 होगा। y1 y2 के बीच में कोई ब्लॉक नहीं है तो गेन देखो 1 है। और फॉर एग्जांपल y5 और y9 के बीच में हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें ट्रांसफर फंक्शन h3 है, तो इसमें गेन तुम्हारा h3 हो जाएगा। y5 और y9 के बीच में h3 है। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये बैकवर्ड है, तो उसको हमने पहले से ही माइनस में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्शन की वजह से। इट्स अप टू अस एक्चुअली कि व्हाट डायरेक्शन वी वांट टू असाइन। सो ऑफ कोर्स बैकवर्ड केस में हम नेगेटिव गेन असाइन करते हैं, फॉरवर्ड केस में पॉजिटिव गेन असाइन करते हैं। इन दिस केस दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो ऐसा है। So we will stop here today क्योंकि we already reached the time। एंड अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को भी? नो सर। Okay. So quickly what we learned in this class, we learned about how to reduce the transfer function, पहला। Second, how to represent uh, block diagram in terms of signal flow graph, or how to represent system interconnection in signal flow graph। तो वो किया हमने क्लास में। नेक्स्ट क्लास में we will see how to find overall transfer function of signal flow graph। So thank you very much, let's meet tomorrow। हाँ please tell me Jill। या क्या शेयर करना है? तो पीपीटी ईमेल कर दीजिए ना। जिल तुम्हारी आवाज कट रही है, बोलो कितने। ओके ओके, वेरी गुड। सो आई assumed earlier कि
वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं है ना सिलेबस, तो ठीक है, मैं जब पीपीटी शेयर करूंगा ना तो पीपीटी में ऑलरेडी सिलेबस है, ठीक है। और परहैप्स अगर सिलेबस चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में भेजता हूँ उसके पहले, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो।